Hello students, today we are going to discuss next part of this chapter. Name of the topic is Kirchhoff's laws of electricity. Kirchhoff's laws. There are two laws, Kirchhoff's first law or Kirchhoff's current law, that is also called KCL or junction rule. First of all, we must know what is junction. A junction in an electrical circuit is a point where three or more conductors meet. See this diagram carefully, like point H. There are only two directions. One is towards right and one is towards left. So this point is not a junction. Point A, there are three directions. This is a junction. Point D is also another junction. So in this figure, there are two junctions, point A and D, where three or more directions are there. Sign conventions. First one, currents moving towards the junction are taken positive. Currents moving away from the junction are taken negative. Here I1 and I4 are the currents moving towards the point. And I2, I3, I5 are moving away from point. And point O is called junction here. So I1 and I4 are taken positive. I2, I3 and I5 are taken negative. And net current at point O is equal to 0. Summation I, net current at junction is equal to 0. This above equation can also be modified as I1 plus I4 is equal to I2 plus I3 plus I5. This is the statement of Kirchhoff's first law. The algebraic sum of electric currents at a junction in any electrical network is always 0. The same diagram, I1 minus I2 minus I3 plus I4 minus I5 equal to 0 means total current at junction is equal to 0, or I1 plus I4 is equal to I2 plus I3 plus I5. This equation can also be used to redefine the Kirchhoff's first law. This is the second definition of Kirchhoff's first law. The sum of all electric currents directed towards a point in a circuit is equal to sum of all currents directed away from the point. This law is based on law of conservation of charge. Kirchhoff's first law का reason. What is the reason behind first law? A point can neither store charge nor a source of charge. एक जो सिंपल पॉइंट है ऑन द वायर, वो ना तो चार्ज को स्टोर कर सकता है ना तो चार्ज का सोर्स हो सकता है. The number of charges that arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with law of conservation of charge. Kirchhoff's second law or Kirchhoff's voltage law. This is also called KVL, Kirchhoff's voltage law or loop rule. First of all, we must know what is loop. A loop is any closed conducting path. कोई भी closed conducting path है जिसमें current flow कर सकता है, that conducting path, closed path is called loop. See this diagram carefully, there are so many loops. In this given figure, A, B, C, A is one loop, A, C, D, A another loop, A, B, C, D, A, this is one another loop, B, E, D, B and A, B, E, D, A. These are the different loops in this diagram where we can apply Kirchhoff's law. Kirchhoff's second law or loop rule or mesh rule. This is the statement of Kirchhoff's second law. The algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in an electric circuit is 0. Summation of all potential differences is equal to 0. Starting from any point in the loop, goes along the loop either clockwise or anti-clockwise to reach back to the same point. जब आप किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे किसी भी लूप पे, तो आपने पहले क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ लूप आपने सेलेक्ट करनी है. देन यू स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं.
देन यू हैव टू मूव आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन आपको वापस घूम के उसी पॉइंट पे पहुंचना है जहां से आपने स्टार्ट किया था। एनी पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप इज टेकन पॉजिटिव। जब भी आप उस पाथ पे मूव करेंगे तो रास्ते में कहीं भी जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मींस यू आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब आपने उसको पॉजिटिव लेना है। एनी पोटेंशियल राइज इन द लूप इज टेकन नेगेटिव। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल देन यू हैव टू टेक नेगेटिव। नेट सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस शुड बी 0। Note, current flows from higher potential to lower potential. Assume the direction of current in the circuit if not given. यदि आपको जो आपने लूप सेलेक्ट की है उसमें करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आपने करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करना है। If we get the value of current with negative sign, it means actual direction of current is opposite to our assumption. और फाइनली सॉल्व करते हुए जब आप करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड इफ द आंसर इज नेगेटिव देन इट मींस तो जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन है वो हमारी एजम्पशन से अपोजिट है। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ऑन द गिवन फिगर। अब हमने इस गिवन फिगर पे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करना है। वी आर सिलेक्टिंग द लूप AHDCBA। आपने अपर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया पहले AHDCBA and we are starting from point A and moving towards point H. From A to H there is one resistance 30 ohm and current I1 is also in the same direction along which we have chosen the path. हमने पाथ को सिलेक्ट किया A to H, हम A to H की तरफ मूव कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अभी हमने डिस्कस किया जब भी हम हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे तो हमने उसको पॉजिटिव लेना है। तो इन दिस इक्वेशन दिस एंड हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करना है, टोटल पोटेंशियल काउंट करना है अलोंग द टोटल पाथ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 30I1, then we have to move from H to point D, nothing is there, then D to C। जब हम D to C की तरफ मूव करेंगे तो रास्ते में सेल है, सेल का पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव, मतलब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है एंड वी नो दैट राइज इन पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव। तो -45, देन अगेन 1 ohm रेजिस्टेंस एंड करंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन अलोंग विच वी हैव चूजन द पाथ। तो आ जाएगा करंट कितना इस पाथ पे I3, तो आ जाएगा 1I3, फिर हमने मूव करना है B to A, तो क्या कौन सी रेजिस्टेंस है 40 ohm एंड करंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, तो आ जाएगा 40I3 एंड नेट सम ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 30I1 माइनस 45 प्लस 1 इंटू I3 प्लस 40 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। बस यही सीखना है हमें यहाँ पे किरचॉफ्स को सेकंड लॉ को कैसे अप्लाई करना है किसी भी लूप पर। नाउ सेलेक्ट द सेकंड लूप। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 30I1 प्लस 41I3 इज इक्वल टू 45। लेट्स अप्लाई दिस लॉ ऑन द सेकंड लूप। लूप इज AHDEFGA। ये कौन सा है, ये टोटल कंप्लीट फिगर, आउटर बाउंड्री, बीच वाली जो आर्म है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं अभी, टोटल आउटर बाउंड्री को काउंट कर रहे हैं AHDEFGA। तो A से स्टार्ट करके अब हम H की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, वो ये 30 ohm रेजिस्टेंस, करंट इज I1 एंड वी आर आल्सो मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। तो आ जाएगा 30I1, उसके बाद क्या है 20 ohm रेजिस्टेंस आ रही है और इस आर्म में करंट कितना है, करंट है आई थिंक I2, बट करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। हम मूव करेंगे D to E बट करंट इज मूविंग फ्रॉम E to D, अपोजिट है तो माइनस आएगा। तो 30I1 माइनस 20I2, उसके बाद आ रहा है 1 ohm रेजिस्टेंस एंड करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो -1 इंटू I2, उसके बाद सेल आ रहा है,
सेल में क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं, हायर टू लोअर पोटेंशियल तो पॉजिटिव लेना है, +80 इज इक्वल टू 0। इसी को रीअरेंज करेंगे तो 30I1 माइनस 21I2 प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ऑन द गिवन फिगर। अब हमने इसमें कौन सी लूप ली है वही हमें पता है, हायर टू लोअर मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, लोअर टू हायर मूव करेंगे तो नेगेटिव लेना है। अब लूप कौन सी है, A B C D E F G A, ये जो लोअर रेक्टेंगल है वो वाली सिलेक्ट की है। अब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, A to B मूव कर रहे हैं। जब हम A to B जाएंगे तो देन देर इज 40 ओम रेजिस्टेंस बट करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। हम मूव कर रहे हैं A to B और करंट मूव कर रहा है B to A, तो इट मीन्स वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, नेगेटिव, तो आएगा -40 I करंट कितना है I3, -40 I3, देन 1 ओम रेजिस्टेंस है, -1 इंटू I3, देन सेल है, तो सेल में कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आएगा +45, देन रेजिस्टेंस है 20 ओम, वी आर मूविंग अपोजिट टू करंट, देन -20I2, देन अगेन -1 इंटू I2, देन अगेन सेल है, कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, +80 इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑल इक्वेशन। इसको हम रीअरेंज करेंगे, देन वी विल गेट दिस आंसर। 41I3 माइनस 45 प्लस 21I2 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। This is another diagram. Find the values of I1, I2 and I3 from given circuit. अब हमें इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है गिवन डायग्राम्स पे, और हमें वहां पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें हमने सबसे पहले लूप सेलेक्ट की है ABCA। सी केयरफुली, ABCA कौन सी है, ये है लेफ्ट साइड में अपर जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है, दिस वन। सेकेंड लूप लेनी है हमने ये वाली ACDA। थर्ड लूप लेनी है हमने ये वाली। दीज आर द 3 लूप्स, बिकॉज इस डायग्राम में हमें 3 करंट्स कैलकुलेट करने हैं, I1, I2 एंड I3, सो दैट वी मस्ट फॉर्म 3 इक्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले हमें ये मेंशन करना है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो दिस इज द लूप ABCA। हम A से स्टार्ट करके जाएंगे पहले B की तरफ, देन C, देन बैक टू A, एंड दीज आर द H stands for higher potential and L stands for lower potential. We know that higher to lower move करेंगे तो पॉजिटिव एंड लोअर टू हायर मूव करेंगे तो नेगेटिव। तो A से स्टार्ट करके मूव टूवर्ड्स B, in the way there is 4 ohm resistance and current is I2 and current is also in the same direction as we are moving A to B। तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस में आएगा 4I2, then we are moving from B to C and we are also moving from higher to lower potential, then प्लस में आएगा +2 into I2 plus I3, then C to A and direction of current is also same, then resistance is 1 ohm, 1 into I1 प्लस में आएगा, then सेल है, सेल में कहाँ मूव कर रहे हैं हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, तो वो नेगेटिव आएगा। हमें पता है जब हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं तो नेगेटिव आता है, तो -10। सो दिस विल बी द इक्वेशन। फिर एक बार फिर देखते हैं, A to B मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस है 4 ओम, हायर टू लोअर में पॉजिटिव लेना है, तो +4 इंटू I2, देन वी विल मूव फ्रॉम B to C। करंट कितना है, I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस कितनी है 2, और हम मूव कर रहे हैं हायर टू लोअर, तो प्लस में आएगा +2 इंटू I2 प्लस I3, देन वी विल मूव फ्रॉम C to A, तो फिर रेजिस्टेंस है 1 ओम, और हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर टू लोअर, प्लस में आएगा 1 इंटू I1, देन सेल है 10 वोल्ट का,
तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, लोअर टू हायर, तो माइनस में आएगा -10 एंड नेट समीशन ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0 अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। अब हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, देन वी विल गेट I1 plus 6I2 plus 2I3 is equal to 10. This is the equation 1. This is the second loop. Name of the loop is ACDA. These are the, again, H stands for higher potential and L stands for lower potential. Now we are moving from A to C. जब हम A to C मूव करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है इसमें 10 वोल्ट। 10 वोल्ट को सेल को देखेंगे आप तो कहाँ मूव कर रहे हैं आप, हायर टू लोअर, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड C। हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं तो 10 प्लस में आएगा। देन फिर आगे 1 ओम रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस जब हम A टू C मूव करेंगे देन वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो माइनस में आएगा, -1 इंटू I1। देन वी विल मूव फ्रॉम C टू D, C टू D मूव करेंगे तो नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, प्लस में आएगा 2 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट इज I2 प्लस I3 माइनस I1। देन वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A, तो रेजिस्टेंस कौन सी है, 4 ओम, और हम कहाँ मूव कर रहे हैं, लोअर टू हायर, माइनस में आएगा -4। So we know that higher to lower positive and lower to higher negative. So this will be the equation. एक बार फिर देखते हैं, A to C मूव करेंगे तो सबसे पहले सेल है, हायर टू लोअर चल रहे हैं तो प्लस में आएगा 10, देन आगे है रेजिस्टेंस 1 ओम, वी आर मूविंग फ्रॉम A to C लोअर टू हायर, देन इट विल बी नेगेटिव, -1 इंटू I1, देन हायर टू लोअर +2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, then again D to A lower to higher, -4 into I1 minus I2 is equal to 0। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे then we will get 7I1 minus 6I2 minus 2I3 is equal to 10। This is the equation number 2। This is the third loop. Loop is B, C, D, E, B. These are the points higher to lower। अब आप सोच रहे होंगे ये हायर टू लोअर हमने कैसे लिखा है, हमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन को देखना है। अब जैसे रेजिस्टेंस है, कहीं भी आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट जो हायर पे रहेगा, लास्ट पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ वी विल मेक द इक्वेशन। हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, B टू C। जब हम B टू C मूव करेंगे तो सबसे पहले है 2 ओम रेजिस्टेंस, और 2 ओम रेजिस्टेंस हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर टू लोअर, तो प्लस में आएगा, तो +2 इंटू I2 प्लस I3। हमें करना क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करना है, नेट पोटेंशियल निकालना होता है पूरी लूप का। देन देर इज वन अनदर रेजिस्टेंस 2 ओम, हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हायर टू लोअर, करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो आ जाएगा +2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। देन वी विल मूव फ्रॉम D टू E then B, D टू E then B, only there is one cell and in which we are moving from negative to positive, लोअर टू हायर, तो माइनस में आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस इक्वेशन, 2I1 minus 4I2 minus 4I3 is equal to -5। This is equation 3। Now we got these three equations। From first equation से हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस I1 की वैल्यू हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू फाइंड की और उसको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। फिर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी इन टर्म्स ऑफ I2 एंड I3। उनमें से I1 एलिमिनेट हो जाएगा, उनको हमने फर्दर सॉल्व करना है। देन वी विल गेट I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5/8 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। नेक्स्ट इज Wheatstone bridge। Here we are not going to discuss the Wheatstone bridge topic, but we will apply Kirchhoff's second law on this given figure।
अब यहाँ पे क्या है, पहले हम जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे. करंट I is drawn from the battery E, then it reaches at point A, then there are two paths, one is towards point B and one is towards point D. If the current towards point B is I1, then current towards point D will be I minus I1. तो यहाँ पे हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, जंक्शन रूल एट पॉइंट A. Then I1 will reach at point B, and there are again two directions. If Ig is the current towards the galvanometer, then in the arm BC, the current will be I1 minus Ig. Now Ig will reach at point D, and from this side A, the current is I minus I1, and at point T both currents will meet, and then that will flow towards point C. So final this current is I minus I1 plus Ig, and finally current at point C it will be I and reaches back to negative of the battery. This is one loop A, B, D, A. This is the second loop B, C, D, B. Apply Kirchhoff's junction rule to assume current in different arms that we have discussed. Apply Kirchhoff's loop rule for loop कौन सी लेनी है, A, B, D, A. A, B, D, A फर्स्ट लूप ली हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A देन मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट B. तो हमें पता है करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, so it is taken as positive. Current is I1 and value of resistance is P, then it will be P into I1. Then we will move from B to D. Current is Ig and resistance is G. Capital G is the resistance of galvanometer, then that will be also taken positive. Then we will move from D to A. Now we are moving opposite to the direction of current, so it will be taken negative. तो आएगा माइनस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. I1P प्लस में प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल सेलेक्ट द सेम डायग्राम, सेम एवरीथिंग. नाउ सेकेंड लूप BCDB, इस पे हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे. वी आर मूविंग फ्रॉम B to C in the direction of current taken positive. I1 minus Ig into Q, then C to D opposite to the direction of current, then taken negative, minus I minus I1 plus Ig into S, then we are moving D to B opposite to the direction of current, then again negative, minus Ig into G is equal to 0. This is the equation. B to C in the direction of current positive, C to D opposite to current negative, and D to B opposite to current then negative. Okay. Now when Ig is equal to 0, bridge is said to be balanced. ये हम व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ेंगे. तो बीच की जो आर्म है BD, इसमें गल्वेनोमीटर लगा हुआ है. जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इस आर्म में करंट फ्लो नहीं करता, तो Ig करंट इन गल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू 0. सो हमने जो टू इक्वेशंस हमने ऑब्टेन की थी टू लूप से, उसमें हम दोनों इक्वेशन में Ig को हम 0 पुट कर देंगे. वी विल गेट दिस इक्वेशन I1 इंटू पी इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. इस सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ Ig की वैल्यू 0 पुट कर दो, यू विल गेट दिस आंसर I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस. नाउ डिवाइड दीज टू इक्वेशंस वी गेट. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज अनदर न्यूमेरिकल. टू सेल्स ऑफ EMF. दिस इज अ डायग्राम. इस डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, देयर आर टू सेल्स. एक की फर्स्ट अपर जो सेल है उसकी EMF है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. सेकेंड आर्म में जो सेल है उसकी EMF है 2.0 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम. दीज आर द टू सेल्स ऑफ EMFs 1.5 वोल्ट and 2 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so that to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm.
नीचे एक 5 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। I1 is the current drawn from cell first, I2 is the current drawn from cell second, and finally both currents are added. I1 plus I2 is the current which enters the resistance 5 ohm. Using Kirchhoff's laws, calculate the current through which each branch of the circuit and potential difference across 5 ohm resistance. तो हमें यहाँ पे क्या है, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। सॉल्यूशन द सेम डायग्राम। सबसे पहले हमने लूप सेलेक्ट की है ABFEA। कौन सा है? कंप्लीट आउटर सर्किट ऑफ द गिवन डायग्राम ABFEA। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? ए से। मूव कहाँ करना है? टूवर्ड्स बी। ए से बी की तरफ जब हम मूव करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है सेल, सेल का पॉजिटिव। वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर। प्लस में आएगा, प्लस 1.5 वोल्ट। देन 1 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है एंड वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, तो माइनस में आएगा, -1 इंटू I1। देन 5 ओम रेजिस्टेंस आ रही है बट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। हम मूव कर रहे हैं B टू F, F टू E एंड करंट मूव कर रहा है E टू F। हम जा रहे हैं F टू E, तो वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट विल बी टेकन नेगेटिव। -5 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन। फिर एक बार फिर देखते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेल आ रहा है 1.5 वोल्ट का, वी आर मूविंग पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस में। फिर आ रही है 1 ओम रेजिस्टेंस, तो इसमें भी हम मूव कर रहे हैं अपोजिट टू द करंट, तो नेगेटिव, तो -1 इंटू I1। देन वी आर गेटिंग दिस 5 ओम रेजिस्टेंस बट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, सो -5 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। देन वी विल सी, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे, वी विल गेट 6I1 plus 5I2 is equal to 1.5. This is the equation number 1. Now select the second loop. CDFEC, CDFEC लोअर रेक्टेंगल जो है उसमें C से D की तरफ मूव करना है। सबसे पहले सेल आ रहा है, तो सेल क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस में आएगा। देन 2 ओम रेजिस्टेंस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, तो नेगेटिव में आएगा। -2 इंटू I2। देन अगेन 5 ओम रेजिस्टेंस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, तो -5 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वी विल गेट दिस आंसर। 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2। दीज आर द टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन में I1 I2 है। जस्ट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस क्या बोल रहा है? फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड इक्वेशन को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन वी विल गेट 17I1 is equal to 0.5. So I1 is equal to 0.5 upon 17 ampere. On solving, we will get this value. I1 is equal to 0.0294 ampere. तो इसको आप put this value of I1 in equation 1 and solve. इस I1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करके हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 will be 0.2647 ampere. Then potential difference across 5 ohm resistance. तो उस डायग्राम पे फोकस करेंगे तो उस 5 ohm रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो कर रहा था? I1 प्लस I2। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V का फॉर्मूला होता है IR। तो I क्या था वहां पे? 5 ohm रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें करंट था I1 प्लस I2। तो I1 और I2 दोनों को ऐड कर देंगे, इनटू रेजिस्टेंस कितनी थी? 5। ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.47 volt. Thank you. Have a nice day.